चेल्सी एक वक्त में यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड क्लब था, बट देन दे हैड अ टर्बुलेंट लास्ट सीजन, ठीक है, दे फेल्ड टू मेक इट इनटू द चैंपियंस लीग। चेल्सी हैड टू प्ले इन कॉन्फ्रेंस लीग। बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया कि जी ये तो एक थर्ड टीयर यूरोपियन टूर्नामेंट है, लेकिन चेल्सी ने वहाँ काफ़ी डिफिकल्ट टीम्स को फेस किया, ग्रुप को टॉप किया, दे स्टेड अनबीटेबल थ्रू आउट द एंटायर टूर्नामेंट, ठीक है। स्क्वाड को चेक किया गया, बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका मिला जिनको प्रीमियर लीग में जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और फाइनल में रियल बेटिस जो कि एक इनफॉर्म साइड थी, विद द लाइक्स ऑफ इसको एंड एंथनी, चेल्सी ने 1-0 डाउन होने के बावजूद दे मेड अ कमबैक एंड दे बीट बेटिस 4-1 टू लिफ्ट द कॉन्फ्रेंस लीग क्राउन। और इससे चेल्सी ने जो है वो अपनी ट्रॉफी कैबिनेट को कंप्लीट किया, विनिंग एवरी यूरोपियन क्लब कंपटीशन दैट हैज हैपेंड। तो देन चेल्सी स्टेप्ड इनटू द क्लब वर्ल्ड कप। अब क्लब वर्ल्ड कप इट वाज द फर्स्ट एडिशन, or it was not given the hype which it will be in a few years, hopefully after a few editions have been played, but still all the top sides were competing from across the globe. ठीक है, Chelsea had a relatively easier pathway into the final, कि बहुत ज़्यादा Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain उनके रास्ते में नहीं आए, but still Chelsea defeated every single one that came in their way, and then they made it into the final, जहाँ पर उनका मुकाबला Paris Saint-Germain से हुआ। ठीक है, अब Paris Saint-Germain जो है वो करंट चैंपियन लीग विनर्स हैं, बेस्ट क्लब इन यूरोप, दे हैव डेसिमेटेड एवरी सिंगल इंग्लिश ऑपोजिशन दैट हैज स्टेप्ड इन देयर पाथ। और चेल्सी ने जो स्टेटमेंट 3-0 हराया पेरिस सेंट जर्मैन को और क्लब वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है, that has given a statement that has sent shock waves across the globe that Chelsea is back. क्योंकि defeating Paris 3-0 shows that not only Chelsea has offensive prowess but also defensive solidarity. और अब with the Premier League 2025-2026 season about to start, ठीक है, with Liverpool, Manchester City and Arsenal all coming with star-studded cavalries and top signings, Chelsea has also bought some players, और जो आपको एक डायरेक्शन शो करती है कि वेयर इज चेल्सी एफसी हेडेड। ठीक है, अगर मैं आपके साथ कुछ साइनिंग्स की बात करूं तो लियाम डिलाप को साइन किया चेल्सी ने, ठीक है, अ यंग स्ट्राइकर इप्सविच टाउन से लिया, ठीक है, सन ऑफ रोरी डिलैप, अ मैनचेस्टर सिटी एकेडमी ग्रेजुएट। अब when you look at Delap, he's a modern day bruiser of a striker. He reminds you of Didier Drogba. I'm not saying that he's anywhere close to Didier Drogba right now, but looking at him, he's a striker that Chelsea can, he's not a finished product right now, but Chelsea can work on him, and Chelsea can, build a strong offensive, team around him, with a striker who's young, who's fresh, and who's energetic, who has physique, and who has pace, and who has finishing as well. अच्छा, इसके बाद चेल्सी ने जो है वो जॉ पेड्रो को साइन किया, ठीक है, अनदर प्लेयर हु वाज अ वेरी गुड कंसिस्टेंट परफॉर्मर एट ब्राइटन बट नेवर फुली एक्सप्लोडेड। लेकिन जैसे चेल्सी एफसी में उसने स्टार्ट लिया है, स्कोरिंग गोल्स एंड गिविंग असिस्ट इन क्लब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड फाइनल, so he could be finally the solution. Maybe Enzo Maresca has finally cracked that code कि जो चेल्सी का एक जिसे कहते हैं ना जो मिसिंग पीस ऑफ द पजल था, वो जो नंबर 9 स्ट्राइकर था, वो was not कन्वर्टिंग गोल्स। They tried it with Kai Havertz, they tried it with Timo Werner, they tried it with Jackson, but none of them worked. So maybe Chelsea has finally found that solution in the shape of not one but two strikers, Liam Delap and then Joao Pedro. Both of them can play as an advancing midfielder, if required, supporting the striker, just playing behind the central striker. अच्छा, इसके बाद Chelsea has bought Jaime Bino Gittins, ठीक है, डॉर्टमंड से, you can consider him just like a Jadon Sancho, a very good left winger, great against any opposition defender when one-on-one, ठीक है, he has good speed, he has flair, he has technique, he has unpredictability, ठीक है, he comes down the lane, he cuts across and he has good finishing as well as good passing ability. फिर इसके बाद जो है वो चेल्सी ने एस्टेवो विलियन को साइन किया है, ठीक है, अनदर ब्राजीलियन सुपरस्टार इन द मेकिंग, ठीक है, एंड चेल्सी हैड टू फाइट अ लॉट इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज ट्रांसफर। तो अब ये जो ट्रांसफर्स हैं, अब ये बेसिकली दे आर पॉइंटिंग एट द डायरेक्शन दैट चेल्सी एफसी इज हेडिंग। Chelsea FC is looking to buy young players and then groom them and convert them into a finished product, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीनियर जो हैं वो प्लेयर्स नहीं साइन किए जा रहे, यंग प्लेयर्स को एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है, एकेडमी ग्रेजुएट्स को लिया जा रहा है, ठीक है, वो प्लेयर्स who are currently making their mark, who are just starting their careers all around the globe, ठीक है, who have a positive impression, who have made positive impression in the few seasons that they have played.
तो उनको चेल्सी ने लिया है और उनके ऊपर चेल्सी वर्क कर रहा है एंड होपफुली दैट इज अ गुड साइन के चेल्सी एफसी लुक्स लाइक अ टाइटल कंटेंडर फॉर द अपकमिंग 2025 to 2026 सीजन इन प्रीमियर लीग। इसके बाद चूंकि चेल्सी ने टॉप 4 में जो है वो फिनिश किया था, तो चेल्सी हैज आल्सो secured their spot in the Champions League as well, and seeing how they decimated the Champions League winners Paris Saint-Germain in the final, they can also be considered no flukes in the Champions League competition as well. They're also going to give tough time to any opposition that steps in their way. So the future looks bright and there are promising signs. और ये सब कुछ जो है इसमें एंजो मरेस्का का विजन तो है ये, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा क्रेडिट टॉड बोली को देना पड़ेगा, द ओनर जिसने बैक किया है अपने मैनेजर को और पैसा इन्वेस्ट किया और लगाया कि ओके इफ यू वांट टू बाय दैट प्लेयर वी आर गोना put a lot of money. So Chelsea is just walking in the market and grabbing every young talent that they can possibly find out there. So the squad looks good, the squad looks fresh, young, energetic, full of talent and youth. ठीक है, फिर कोल पाल्मर इज देयर, ठीक है, नेटो इज देयर, उसके बाद एस्टिवान ले लिया है, बाइनो किटन्स है, ठीक है, डिलाप है, पेड्रो है। तो यहाँ से आप देखें कि अटैकिंग प्रोसेस कितनी ज्यादा है, ठीक है। फिर मिडफील्ड में साइसेडो, लाविया, एंजो फर्नांडेज, दीज गाइस हैव जेल्ड अप एंड मेड अ वेरी गुड केमिस्ट्री। डिफेंसिवली और गोल कीपिंग फ्रंट पे थोड़ा सा बीइंग अ चेल्सी फैन मेरे कंसर्न है कि वी शुड हैव साइंड अ गोलकीपर. We cannot possibly expect Robert Sanchez, to win us the Premier League or the Champions League. But seeing that how well he performed in the Club World Cup final, and where Chelsea has lifted 2 trophies, Conference League and Club World Cup, we never know. ठीक है, even इस डिफेंस के साथ भी Chelsea could be a real title contender. ठीक है, but still there is some work to be done. और भी कुछ pipeline signings जो हैं they are looking likely. Xavi Simons might be headed to Stamford Bridge. फिर एक और डच लीग एजेक्स का जो है वो डिफेंडर है हेटो, ही कैन आल्सो बी कमिंग टू चेल्सी. तो मतलब स्टिल द ट्रांसफर विंडो इज ओपन एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स दैट चेल्सी कैन ऐड अ फ्यू मोर प्लेयर्स इन द स्क्वाड. बट इवन अगर आप अभी देखें कि इस वक्त तक जो स्क्वाड है इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ कंप्लीट स्क्वाड. ठीक है, हाँ ये है कि इसमें 1-2 डिफेंडर्स ऐड किए जा सकते हैं, एक गोलकीपर और अच्छा लाया जा सकता है. अदरवाइज मिडफील्ड पे अटैकिंग फ्रंट पे जो स्क्वाड जो है इट इज कंप्लीट. नोनी मडुएके हैज बीन सोल्ड. ठीक है, जेडन सांचो माइट ऑल्सो बी हेडेड आउट. ठीक है, क्योंकि डिलाप और पेड्रो की शक्ल में 2 स्ट्राइकर्स नए आ गए हैं, तो जैक्सन माइट, देयर आर रूमर्स दैट जैक्सन माइट बी हेडिंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड. सो once the Premier League season kick starts and Champions League begins, only then we are gonna find out कि ये जो new look Chelsea है how much are they willing to go the distance. But एक चीज confirm है, this new Chelsea side, they look brave, they look confident, they look super promising and full of exciting and young talents assembled from across the globe. So comment section में बताइएगा कि what do you make of this Chelsea squad and which player do you think is gonna make the biggest impression in the Premier League and the Champions League seasons which are about to start. तो आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.